और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से आ रही है, जहां पर टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान मिला है। शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया टेस्ट कैप्टन बनाया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीसीसीआई की। But he's shown what needs to be done to succeed at this level. Needless to say, even Rohit, he's been a leader over the last couple of years since he started leading the test matches. It's a new cycle, so it's an opportunity to build something for us as well. But there's no doubt. That's why I think we've got to show them the respect that they earned instead of speculating too many things. It's sometimes a personal call with players, and you've got to respect that. And like I said, their performances over the years have shown the amount of games that they've won for India. It's someone else's chance now, but there's no doubt we'll miss them. All three of them, and Shami really. He's again in Test cricket. He's been incredible. So 4 guys like that not being part of your squad is going to make it a little bit tougher, but it's an opportunity for other guys. Hi, what's the status of Bumrah? Is he fit for all the 5? What's the status of Bumrah? Is he available for all the 5 games, or what's the workload announcement going forward? I don't think he'll be available for all 5 tests. As far as, again, the physios and the doctors have told us, whether it's 4 or 3, I think we'll see how the series goes and how his body can take the workload. Needless to say, how important he is. So even if he's fit for whether it's 3 or 4 tests, I think he's going to win us a few test matches. Yeah. So we're just glad that he's fit, and that little setback that he had in Australia wasn't too bad, and he's back playing. We've seen, I know it's T20 cricket at the moment, but we've seen what he's doing in the IPL. So we're just happy that he's part of the squad. Thanks for elaborating on the Kohli and Rohit bit and putting an end to all the criticisms. I was very much interested in the Karun and the slot. How challenging was it to actually overlook someone like, or prefer Karun over someone like Sarfraz, who was around but didn't get an opportunity in Australia? What sort of a signal does it send to the larger pool of players in the pipeline? Yeah, sometimes you just have to make those decisions. Sarfaraz did play the 3 test matches in India. I know he got 100 in the first test, didn't get runs, missed out in Australia. Sometimes those are decisions which the team management takes. Whether it's fair on somebody or unfair on someone, those are the choices that you make in the best interest of the team. And at the moment we felt, Karun obviously has put heaps of runs over the last couple of seasons. He's played a little bit of test cricket early in his career. Has played a bit of county cricket. We feel that he's batting well enough. Also with now Virat not there, clearly lacking a little bit of experience in that batting. Jaiswal touring for the first time to UK. I know Gill's played 1 test match. So it's basically KL and Pant who've played a series before. So we felt his experience could help. Sometimes it is always going to be unfair on somebody else, but eventually you've got to make choices. You do have 2 senior players in the squad, at least senior players. You have Kerr, Bumrah, Ravindra Jadeja. Were there any conversations, especially with Rahul as well as Bumrah, considering they have captain in there? तो टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट टीम का टीम इंडिया का ऐलान किया। दरअसल अगले महीने ये दौरा शुरू होने वाला है, इंग्लैंड दौरा, उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इस बार युवा खिलाड़ी शुभमन गिल को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। हालांकि 2-3 नाम चल रहे थे कैप्टनसी की रेस में, इसमें शुभमन गिल का नाम था, ऋषभ पंत का नाम, केएल राहुल का नाम भी हालांकि इस बीच में चल रहा था। लेकिन एक तरह से अगर हम देखें बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई ने इसमें शुभमन गिल को तरजीह दी है। शुभमन गिल एक युवा खिलाड़ी जो कि लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो या T20 हो, उसमें लगातार खुद को साबित किया है शुभमन गिल ने, और उनमें भविष्य का कप्तान देख रही है बीसीसीआई। इसीलिए शुभमन गिल को फिलहाल मौका दिया गया है और शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। अभी हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने टेस्ट टीम से संन्यास लिया था, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि तलाश शुरू हो गई थी कि कौन है ऐसा
शख्स जो भारत की टेस्ट टीम की कमान को संभाले। तो ऐसे में 2-3 नाम चल रहे थे, हालांकि केएल राहुल का नाम भी था, लेकिन उनका जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस राह में आड़े आया होगा। लेकिन शुभमन गिल के तौर पर एक परफेक्ट सिलेक्शन किया गया है बीसीसीआई की तरफ से। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं अजीत अगरकर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो 32 टेस्ट मैचों का अनुभव है उनके पास और 5 सेंचुरीज 7 हाफ सेंचुरीज शुभमन गिल अपने टेस्ट करियर में लगा चुके हैं। वनडे के स्टैट्स उनके शानदार हैं। उप कप्तान के तौर पर ऋषभ पंत को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि शुभमन गिल के वाइस बनाया गया है ऋषभ पंत को। इसके अलावा इंग्लैंड जाने के लिए जो टीम है उसमें वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, केएल राहुल को टीम में जगह दी गई है, करुण नायर टीम में शामिल किए गए हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो अब इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है। उसी से रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। Karun Nair is a performer in Ranji Trophy, right? So he's part of that. There's a Jaiswal, there's a Dhruv Jurel, who's already part of that 18, who are going to be in the test team. So someone's bound to miss out. It was unfortunate. Even in Australia when he went, I understand he didn't get a chance. But then KL Rahul went because he needed some game time before the test series. Yeah, but only 11 can play. So someone will have to sit out at point, at some stage. I wish we could play 18, but we can't. Now if you start picking on players through the history, there'll be about 1 million players who've missed out. It's not intentional that you're keeping somebody out, but you're trying to pick the best possible players for that particular game or that series that you want to, and someone's going to miss out, like I say. Now if you keep picking on names, it is never going to be a conversation starter anywhere, because there'll always be, even when we pick 18, there's somebody who's missing out. Do those 18 guys who've been picked not deserve to be there? That's the question you need to answer. Yeah, Ajit, the fifth test match was the first week of January. Kohli and Rohit retired about 4 months later. Do you think the any selection committee will be comfortable with senior players taking calls, with your what to select a team for a 5-test series? I think they had an idea that they're not going to be going this way. Gates said they're not going to be picked. They were not going to be picked? Yeah. I don't know. You might know, because I don't. Because again, retirement, playing not. With senior players taking calls, just before the team was going to be selected. 4 months gap after the last. I mean, when somebody takes a call, is not up to me. Eventually, like I said, they reached out and I had a conversation with them. So whether somebody decides to retire or doesn't decide to retire, it's a personal call. Even if you're going to pick someone or not pick somebody, you're not going to ask that guy to retire. It's a personal call. And you have been better positioned to form a team. Call it come much earlier. I mean, I don't know whether we would have been in a better position. It's you're still. It's a new WTC cycle, so you're looking at all sorts of scenarios over the next 2 years. What is going to help build a team leading up to that WTC final? So, look, I mean, again, it's a personal call. So when somebody calls it or doesn't call, it's not up to us. Yeah. Again, like I said, just all we need to do is show them a little bit more respect and move on. It's an opportunity for somebody else, and that's our job eventually to pick someone else when someone finishes. So. No, whether we would have been in a better position or not, it doesn't really matter. These two guys are big players for us, were big players for us in Test cricket. तो टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। इंग्लैंड दौरा इस टीम का पहला दौरा होगा और आपको बता दूं कि लंबे वक्त के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बिना ये टीम अब उतरेगी और अगले महीने एक तरह से अग्नि परीक्षा है शुभमन गिल की भी, टीम इंडिया की भी। तो टीम इंडिया का ऐलान किया गया है, कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे और इसके अलावा मैं बात करूं तो यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन, करुण नायर, इन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। तो ये टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। मनोज जोशी हमारे एडिटर स्पोर्ट्स इस वक्त साथ में है मेरे। मनोज जी, कैसे आप इस टीम को देखते हैं? एक युवा कप्तान मिला है टीम को और खास बात है युवा के साथ साथ हमेशा जोश से भरे और मैदान पर बड़ा पॉजिटिव दिखते हैं शुभमन गिल।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि इस वक्त एक ऐसा कप्तान चाहिए था भारतीय टीम को जो लंबे समय तक कप्तानी की बागडोर संभाल सके, जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो। और अभी क्योंकि ये टेस्ट और वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के तो खैर बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में भी अब अगर आप IPL का परफॉर्मेंस देखेंगे इस बार का, तो ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है साई सुदर्शन के बाद। केवल 2 रन कम है उनके साई सुदर्शन से। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि उनमें लगा सकते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी लेवल उनका बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरी टीम में, तो इन कप्तान के अलावा अब देखिए ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया है, और ये भी युवा खिलाड़ी हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार तेज गेंदबाजी को ज्यादा महत्व दिया गया है। पिछली बार 5 जो 2021 में जो भारतीय टीम गई थी इंग्लैंड के दौरे पर, 5 तेज गेंदबाज और 1 जो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे, जिसमें शार्दुल ठाकुर थे। लेकिन इस बार 5 की जगह पर 6 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, यानी ये कि ये 5 फास्ट बॉलर और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, नीतीश रेड्डी को भी रखा गया है, शार्दुल ठाकुर को भी रखा गया है। तो इसका मतलब है कि गेंदबाजी को ज्यादा मजबूत करने की तरफ ध्यान केंद्रित किया। और उतना ही नहीं, स्पिन बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो कुलदीप यादव हैं जो कि अपनी स्पिन के फनकार हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन हैं, और वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, यानी बल्लेबाजी को गहराई देने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड टीम में 3 या 4 जो है अमूमन, क्योंकि अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ, 3 या 4 जो है तेज गेंदबाज वहां खेलते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर लगाम कसने का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक मजा हुआ ऑफ स्पिन गेंदबाज, और वो वाशिंगटन सुंदर है। रविंद्र जडेजा टीम में है, उनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, बल्लेबाजी है, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर टीम काफी बैलेंस है। साई सुदर्शन जो है वो टीम में आए हैं, उनको एक इनाम मिला है लगातार अच्छा खेलने का, और ये जो है सरे काउंटी की तरफ से खेलते हैं, और यानी इंग्लैंड में खेलने का इनके पास तजुर्बा है। करुण नायर को देखें तो वो भी आपको याद होगा, भारत में सिर्फ सहवाग और करुण नायर ही 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में। लंबे समय के बाद उनकी जो है वापसी हो रही है। 2017 में इन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था, तो वो टीम में लौटे हैं, और उनको जो कंसिस्टेंसी लेवल का इनाम मिला है, जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है। अर्शदीप सिंह जो कि केंट काउंटी की तरफ से खेलते हैं, और क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट के फनकार हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, उसका उन्हें इनाम मिला है। तो ये कुछ टीम काफी बैलेंस और काफी अच्छी टीम है। बिल्कुल। और लंबे वक्त के बाद करुण नायर की वापसी हुई है। मतलब मुझे उनके टैलेंट पर कभी कोई डाउट नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा बीच में ऑफ ट्रैक हो गए थे। लेकिन अभी जो 24-25 का सेशन था उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और कहते हैं ना, घरेलू क्रिकेट खेलते हुए 863 रन बनाए, और शायद इसीलिए उनको कंसीडर भी किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें, 49.06 का उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का औसत है, और कंसिस्टेंटली इन्होंने रन बनाए हैं। जैसा कि आपने बताया कि रणजी ट्रॉफी में इनका परफॉर्मेंस बताया, अगर उसमें और गहराई में जाएंगे आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु के खिलाफ इन्होंने बहुत शानदार सेंचुरी बनाई। तो कंसिस्टेंसी इनका बहुत बड़ा इनका मूल मंत्र है, जो इन्होंने उसको अनुसरण किया। हालांकि T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। IPL में एक मैच में चले 89 रन की पारी खेली, उसके बाद इनका बल्ला खामोश रहा। लेकिन ये बेसिकली टेस्ट क्रिकेट के फनकार हैं, और उसी तरह से अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल जो किया गया है, ये भी टेस्ट क्रिकेट के ही फनकार हैं। कभी आप देखिए इनको T20 क्रिकेट नहीं खेलते, और बंगाल के प्लेयर हैं, और इन्होंने एक डबल सेंचुरी भी बनाई थी पिछले दिनों। तो रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते हुए मुंबई के खिलाफ, तो ईरानी ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी में तो उनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहा है। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर कभी टीम इंडिया का भरोसा नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया गए थे ये, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको याद होगा, तब भी 18 की टीम में इनको बुलाया गया था, इनको बुलावा आया था उसका। तो इंग्लैंड गए थे तो भी इनको बुलावा आया था, लेकिन उसके बावजूद जो है एक मौके पर तो इनके होते हुए सूर्य कुमार यादव को बुला लिया गया, और वहाँ 2 प्लेयरों को कुल मिलाकर बुलाया गया था। तो अब इसका मतलब है उन पर अगर भरोसा जताया गया है, तो एक तीसरे ओपनर की कमी की भरपाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। 18 सदस्यीय क्रू है जो अब इंग्लैंड के दौरे पर जाएगा। 20 तारीख से सीरीज शुरू होने वाली है। फटाफट मैं नाम पढ़ देता हूं आपके सामने, फिर ब्रेक लूंगा। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं और वाइस कैप्टन रहेंगे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, P कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप और कुलदीप यादव। ये टीम इंडिया का स्क्वाड है जो अगले महीने यानी कि जून में इंग्लैंड से लोहा लेगा बिना विराट और रोहित के। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है टीम इंडिया की इस नई युवा टीम की, जिसकी कमान भी अब एक युवा 25 साल के खिलाड़ी के हाथों में दी गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चलो बेटे, टाइम हो गया, मुझे मत ले जाओ।